Good morning, students. How are you all? Very good, very nice. You all are fine and safe at your home. Really? Yes. Children, as you know that we have completed chapter 16. हमने chapter 16 explanation, book exercises and word bank with sentences तक complete कर लिया है. Today ma'am will share answer these questions with you. तो इसी के साथ हमारा literature का syllabus complete हो जाएगा for NLO exams. Now grammar and writing sections are remaining. So grammar we are continuing with. On the next turn ma'am will start with writing section. So today children we will start chapter 20. आज हम क्या कराएंगे? आज हम chapter 20 कराएंगे, that is prepositions. आप सबने पढ़ा होगा ना in the previous class also in class 3rd. Is it? Yes, very good. So prepositions क्या होते हैं children? A preposition is a word. Preposition क्या होता है? एक वो word होता है या ग्रुप ऑफ वर्ड होता है दैट लिंक्स, जो लिंक करता है एक नाउन या प्रोनाउन को अदर वर्ड्स के साथ किसी भी एक सेंटेंस में, किसी भी सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन के साथ उस सेंटेंस के दूसरे वर्ड्स को लिंक करता है. लिंक मतलब कनेक्ट, लिंक करता है, रिलेशनशिप स्टैब्लिश करता है उनके बीच में. दैट इज प्रीपोजिशन. प्रीपोजिशन इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स. प्रीपोजिशन. Children, example, there is a dog in the garden. So you can see children, there is a dog, the garden. एक ऐसा word है इसके बीच में जो इनको लिंक कर रहा है. एक बॉय को गार्डन से, एक डॉग को गार्डन से लिंक कर रहा है. in the garden, right? Yes. So this is what preposition. There are so many preposition words like in, on, at, under. Here are types of prepositions. Children, यहाँ पर next we will discuss types of preposition. But before that, let's go through the examples given in your book. It does not belong to anyone. So the word to is preposition. It entered through the gate. It is sitting beside the swimming pool. It has been there for an hour. Let's get some milk for it. So the words like in, to, through, beside, for, these are prepositions. Is it? Now let us come to the types of prepositions. Prepositions दो types के होते हैं, एक तो place और time. जब कोई भी preposition time के बारे, place के बारे में बता रहा है, that is preposition of place. Like an example, children are playing in the park. तो children are playing in the park. Park क्या है हमारा? Place है. The bottle is kept on the table. Bottle, another example I am saying, bottle is kept on the table. तो table क्या हो रही है? हम यहाँ पर जगह की बात, place की या position की बात हो रही है, right? So that is preposition of place. Preposition of place में children काफ़ी सारे preposition words आते हैं like in, on. In, preposition in हम कहाँ use करते हैं? When we are keeping something inside four walls. जब हम किसी भी चीज़ को four walls के अंदर कीप रखते हैं, राइट? तो दैट इज, जब कोई भी चीज़ फोर वॉल्स के अंदर है, दैट इज इन. और कोई भी चीज़ जब किसी सरफेस को, लाइक दिस इज अ टेबल और आई कैप दिस चॉक या पेंसिल ऑन द टेबल, तो जब किसी भी सरफेस को टच करती है, दैट इज ऑन. देयर वी यूज ऑन. तो इन और ऑन का डिफरेंस आपको समझ आया चिल्ड्रन? नेक्स्ट आता है अंडर. जब कोई भी चीज़ किसी के अंडर होती है, नीचे, और just like closely, जो गैप है, like suppose the chalk is under the book, या cat is hiding under the table. cat किसके नीचे हाइड कर रही है? टेबल के नीचे. तो closely near है, वो under है, right? तो there we will use under. and over, closely above. closely, yes, जो मतलब क्या है? closely क्या है हमारा? क्लोज है, क्लोजली अबव, तो वो क्या हो गया हमारा? ओवर. सो आई एम श्योर चिल्ड्रन आपको अंडर और ओवर में समझ आया होगा डिफरेंस. लेट्स टेक एग्जांपल फ्रॉम योर बुक ऑल्सो. यू कैन सी इन द बुक चाइल्ड इज अंडर द ट्री. तो जस्ट क्लोजली बिलो है, क्लोजली नीचे है उसके. द बर्ड्स आर फ्लाइंग ओवर द ट्री. वो ट्री के ऊपर बर्ड्स फ्लाई कर रहे हैं, तो वो क्या है? क्लोजली अबव है. वहाँ पर हम क्या यूज़ करते हैं? अंडर. नीचे के लिए अंडर और ऊपर के लिए ओवर. नेक्स्ट आता है अबव एंड बिलो. जब लाइक यू कैन सी द एग्जाम्पल, देर इज अ क्लॉक अबव द टेबल. टेबल के अबव एक क्लॉक है, तो हायर देन, वो ऊंचा है उससे, राइट? क्लोजली अबव नहीं है, हायर है, ऊंचा है. देयर वी विल यूज अबव. सेम, देर इज अ टेबल बिलो द क्लॉक. तो गैप कितना है? ज़्यादा है, राइट? सपोज इफ आई एम टॉकिंग दिस बुक and this book is under my hand,
I kept this hand here. This is closely below. ये इसको कह सकते हैं closely above. And if I make a difference higher, तो वो क्या हो गया? Closely below या higher than और lower than, right? तो जब ज़्यादा डिफरेंस होता है, ज़्यादा गैप होता है, देयर वी यूज़ फॉर अबव, ऊपर के लिए अबव एंड नीचे के लिए बिलो, राइट? सो आई एम श्योर चिल्ड्रन ये आपको डिफरेंस समझ आया होगा. नेक्स्ट कम्स इन फ्रंट ऑफ. जब कोई भी चीज़ किसी के सामने होती है, राइट? आई एम इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, फाइन. एंड बिहाइंड, पीछे, लाइक द चाइल्ड इज हाइडिंग बिहाइंड हिज मदर. बच्चा अपनी मदर के पीछे छुप रहा है, राइट? Yes, the cat is hiding behind the sofa. पीछे उसके. Very good. I hope आपको समझ आया. Next comes between and among. के बीच में. अगर हम हिंदी में इसका अर्थ निकालेंगे तो it will come के बीच में. जब हम कोई भी चीज़ two people के बीच में divide करते हैं, right? When we talking about two people, two person, two things. Sorry, two person, two things, two places. So there we use between. और दो से ज़्यादा की जहाँ बात होती है, there we use among. Like we can see example, circle is between the squares, right? Circle is among the squares. जब ज़्यादा के बीच में है, दो के बीच में है तो between the squares, और दो से ज़्यादा के बीच में है तो among the squares. I hope children आपको समझ आया prepositions of place. Next आता है time. Preposition of time में mainly यहाँ पर 3 prepositions दिए हैं in your book, in, on and at. इनका यूज़ हम कहाँ करते हैं चिल्ड्रन? वी यूज़ इन. हम इन कहाँ करते हैं? पार्ट्स ऑफ द डे, लाइक इन द इवनिंग, इन द मॉर्निंग, राइट? और मंथ्स, ईयर्स एंड सीजन्स. सीजन से पहले, मंथ्स और ईयर से पहले, और पार्ट्स ऑफ द डे से पहले, इन द इवनिंग, इन द मॉर्निंग. नेक्स्ट कम्स ऑन. ऑन का यूज़ हम कहाँ करते हैं चिल्ड्रन? बिफोर द डेज एंड डेट. डे और डेट से पहले हम बिफोर का यूज़ करते हैं. वी यूज़ एट. एट का यूज़ हम क्या करते हैं? डेफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम पे. एट 7 o'clock, एट 6 o'clock, एट 6 PM, एट 10 AM, राइट? नेक्स्ट मील टाइम्स, लाइक एट लंच, एट डिनर, फाइन. और नेम्स ऑफ फेस्टिवल्स, एट क्रिसमस, एट न्यू ईयर. इज इट? वेरी गुड चिल्ड्रन. सो आई एम श्योर आपको समझ आया होगा. आई एम श्योर यू हैव अंडरस्टूड. Very good. And answer key, you have to do these exercises, and the answer key of this exercise ma'am will share in the PDF form. Ma'am PDF form में आपके साथ answer key share करेंगी. Is it? So this way you have, till then you try to do it yourself. जब तक आप अपने आप कोशिश करेंगे and you will match the answers. आप अपने answers को match करेंगे. Wherever the changes are, तो आप उसको चेंज कर लेंगे. एंड प्लीज़ डू दिस वर्क विथ पेंसिल. आप ये काम किससे करेंगे? अपनी बुक का वर्क पेंसिल से करेंगे. ऑफ कोर्स यू आर डूइंग इन नोटबुक ऑल्सो विथ पेंसिल ओनली. इज इट? प्लीज़ डू इट इन नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग. थैंक यू चिल्ड्रन एंड हैव अ नाइस डे.